Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the recent landmark judgment by the Supreme Court. On that we have with us very learned faculty CA Rajiv Jainji with us. Sir, a warm welcome and thank you very much for giving us your valuable time. Namaskar, namaskar. And before going to start, let me give you a brief profile about the CA Rajiv Jainji. I don't think so he need any introduction because he is very renowned faculty. And CA Rajiv Jainji is practicing chartered accountant in Daryaganj, New Delhi, and the partner in SSAR and Associates, sir. I think I'm right. बिल्कुल 100% right. And he's delivering a lecture in income tax in the various topic like in the income tax appeals, notices, penalties, various and vast experience. And my sincere thanks once again to Rajiv Jain ji. And जब से ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, we have received many call, many messages. What would be the impact? And we all aware about this 148. Sir, I think from last year it was very hot topic 148. From 1st April, जब से 1st April 21, after 1st April 21, income tax department had issued, I think, more than 90,000 notices for the reassessment. And 9,000, approximately 9,000 writ petition in the different high courts. It's a great thing. And almost all the high courts give in the favor of the SSC except one high court. I think Telangana High Court was there, who has said कि no, it's the valid notices. But almost all the yes sir. Chhattisgarh High Court. So matter goes to Supreme Court, and Supreme Court set aside the decision of the high courts and said it's the valid notices. And Supreme Court also said we are using the power of the Constitution of India, I think Article 142. They are using the power under Article 142 of the Constitution of India. And sir, I only want to say one thing. It's very renowned and landmark decision. My request only to you, give us also a brief idea of this and what would be the impact on the SSC, because many members are asking the question. And also one my curiosity is also there, is there any other review petition like that is possible or not? So that we will discuss one by one with you. So now it's over to you, sir, not taking so much time. So once again my sincere thanks to you. Now it's over to Rajiv ji. Thank you, Vivek Khurana ji. First of all, I convey my thanks to entire team of CASansar.com for giving me another opportunity to come here and interact with my professional colleagues. And today's topic, as you rightly said, is very interesting. That what will happen to the notices which were issued on 1st April 2021, between 1st of April 2021 and 30th June 2021. And yesterday, on 4th May 2022, there was a landmark decision by the Honorable Supreme Court rendered in the case of Union of India versus Ashish Agarwal, civil appeal number 3005/2022. So there was a huge controversy pertaining to Section 148 notices. And in my legal experience, जब से मैं practice कर रहा हूँ, I've seen that this section और ये जो litigation हाँ, this is the मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ा litigation मैंने अपनी life में देखा होगा. And I have been throughout the hearings which were there in Delhi High Court. तो जिस तरीके से मैटर लिटिगेट हुआ, जितने नंबर ऑफ पिटिशंस फाइल हुई, कितने सारे वकील और लीगल फ्रेटर्निटी इस केसेस में इन्वॉल्व थी और कितनी इसमें लेबर हुई on the part of the SSC's advocates as well as on the part of the department's advocate, and further on the part of the various judges who have rendered these landmark judgments which were given by various high courts, including Delhi High Court, Allahabad High Court, Calcutta High Court, Rajasthan High Court, Madras High Court, and Bombay High Court. They all rendered their decision in favor of SSC. So let us first, before we go and understand the implication of the judgment, let us first understand what the entire controversy was. Because जब हमें पूरी controversy समझ में आएगी, and that will also be beneficial for the persons who are understanding the issue for the first time.
you see, section 148 was replaced with effect from 1st April 2021. यानी 31 मार्च 2021 तक there was a separate set of provisions, section 147, 148, 149 and 151. और 1 अप्रैल 2021 से हमारे पास ये चारों सेक्शन रिप्लेस हो गए और साथ में एक नया सेक्शन आ गया 148 कैपिटल ए. जो प्रीवियस रिजीम था रीअसेसमेंट का, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट असेसिंग ऑफिसर कुड हैव रीओपन्ड असेसमेंट अप टू 6 years. ठीक है सर, उसके लिए एक प्रोसीजर प्रेस्क्राइब था और प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करने के बाद उसको एक 148 का नोटिस इशू करना होता था विद द प्रायर सैंक्शन अंडर सेक्शन 151. और 148 का नोटिस इशू होने के बाद एसएससी वाज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पांस टू दैट नोटिस. फिर उसके बाद एसएससी रीजंस ऑफ रीओपनिंग मांगता था बाय फॉलोइंग द मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ जीके एंड ड्राइव शाफ्ट 259 ITR 19. फिर वो रीजन मिलने के बाद एसएससी अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करता था. ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद असेसिंग ऑफिसर उस ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज करता था एंड आफ्टर दैट असेसिंग ऑफिसर डिराइव्ड जुरिसडिक्शन टू प्रोसीड विद द असेसमेंट अंडर सेक्शन 147. दिस वाज द प्रीवियस लॉ. अब हुआ क्या कि इस प्रीवियस लॉ को एक इंटायरली न्यू रिजीम में रिप्लेस कर दिया बाय द फाइनेंस एक्ट 2021 व्हिच वाज पास्ड ऑन 28 मार्च 2021. अब ये नए लॉ ने क्या किया कि आप अब नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू करने से पहले एक शो कॉज नोटिस इशू करेंगे एसएससी को विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, जिसमें आप एसएससी को बताएंगे कि असेसिंग ऑफिसर के पास क्या मटेरियल है बाय व्हिच ही हैज फॉर्म द रीजंस की कोई इनकम एस्केप हो गई है एसएससी की. वो मटेरियल वो एसएससी को कॉन्टेस्ट करेगा. एसएससी विल बी अलाउड एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एंड मेक रिप्लाई टू दैट शो कॉज नोटिस. और फिर उस शो कॉज नोटिस की रिप्लाई एसएससी को कंसीडर करने के बाद एक असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 148 कैपिटल ए, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021, कि वो उसमें एक ऑर्डर पास करेगा और वो ऑर्डर पास करने के बाद वो फिर वो सेक्शन 148 का नोटिस इशू करेगा. दैट नोटिस की भी आपके पास प्रायर सैंक्शन होगी फ्रॉम द स्पेसिफाइड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 151 और साथ में वो जो 148 कैपिटल ए सबसेक्शन डी का जो ऑर्डर है वो उस नोटिस के साथ में लगाना होगा और उसके बाद रीअसेसमेंट की जुरिसडिक्शन असेसिंग ऑफिसर के पास आएगी. दिस वाज द न्यू लॉ. अब ये जो पुराना प्रोविजन था उसकी लाइफ सीज हो गई 31 मार्च 2021 को और 1 अप्रैल 2021 को नए प्रोविजंस ने लॉ को सब्स्टिट्यूट कर दिया. राइट. इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जितने भी नोटिस इशू हो रहे थे they could have been issued only in compliance with the new law but not in accordance with the old law. In the meantime covid आ गया और फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले गवर्नमेंट पहले टोला का अध्यादेश लेकर आई, ऑर्डिनेंस लेकर आई और फिर टोला एक्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया. और टोला एक्ट में कोविड की केसेस को कंसीडर करते हुए सीबीडीटी वाज गिवन पावर टू extend some limitation for relaxation for the in favor of the department as well as in favor of the SSC. तो टोला एक्ट 2020 की पावर यूज करते हुए डिपार्टमेंट ने दो नोटिफिकेशन निकाले, एक 31 मार्च 2021 को और दूसरा निकाला उन्होंने 30 अप्रैल 2021 को. और उन दोनों नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि ये जो नोटिस अंडर सेक्शन 148 है which were required to be issued up to 31st March 2021, they could have been now issued up to 30th June 2021. यानी कि इन नोटिफिकेशंस ने कहा कि जो 1 अप्रैल से लेकर और 30 जून तक जो नोटिस इशू होने हैं पुराने लॉ के, वो आप पुराने लॉ के हिसाब से आप इशू कर दीजिए. उसके लिए आपको नए लॉ को फॉलो करने की जरूरत नहीं. राइट. नाउ दीज नोटिफिकेशंस वर चैलेंज्ड बिफोर वेरियस हाई कोर्ट्स कि देखिए सर जब लॉ रिप्लेस हो गया देन ओल्ड लॉ कैन नॉट प्रिवेल. और अगर जब भी जो नोटिस 1 अप्रैल के बाद इशू होंगे दैट हैज टू बी इन कंप्लायंस विद द न्यू लॉ ओनली. और प्रीवियस लॉ का कोई भी नोटिस वो इशू नहीं हो सकता. आपको नए लॉ का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. पहले आप 148 ए का नोटिस देंगे, फिर आप एसएससी को मटेरियल सप्लाई करेंगे, एसएससी अपनी रिप्लाई फाइल करेगा, उस रिप्लाई को आप कंसीडर करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे, उसके बाद आप 148 का नोटिस दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दे सकते. तो इन सारे केसेस में क्या हुआ, डिपार्टमेंट रिलाइंग अपॉन दीज टू नोटिफिकेशंस ऑफ 31 मार्च 2021 एंड 30 अप्रैल 2021 इशूड अंडर टोला 2020. इन दोनों नोटिफिकेशन के बेसिस पे डिपार्टमेंट ने ये 148 ए का प्रोसीजर फॉलो किए बिना सारे नोटिस इशू कर दिए. राइट.
और पिछले 6 सालों के नोटिस जो 31 मार्च तक हो सकते थे वो सारे नोटिस उन्होंने इश्यू कर दिए। यानी कि असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 या 18-19 भी, ये सारे नोटिस उन्होंने 31 मार्च तक जो इशू हो सकते थे वो 1 अप्रैल के बाद इशू कर दिए। अब एसएससी विजिलेंस हाईकोर्ट के सामने गया कि देखिए साहब, जब नया लॉ आ गया तो कोई नोटिफिकेशन किसी लॉ को रिप्लेस नहीं कर सकता, किसी लॉ को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सारी हाई कोर्ट्स ने, जिसका मैंने नाम लिया, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इन सब ने एसएससी की बात मान ली that all the notices which were issued after 1st April 2021 under the old provisions, following the old procedures, without following the mandate of the new law, are illegal and non-est in the eyes of law। और ये सारे हाई कोर्ट ने वो सारे के सारे नोटिस उड़ा दिए। अब डिपार्टमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो था उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और करीब 9000 के आसपास पिटीशन ऑल ओवर इंडिया नोटिस को चैलेंज करते हुए फाइल हुई बिफोर द डिफरेंट हाई कोर्ट्स। बहुत सारी हाई कोर्ट्स में मामले अभी पेंडिंग है। इसका मतलब हुआ दिस ए ह्यूज लिटिगेशन। अब उन 9000 केसेस में डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो इतना बड़ा वॉल्यूमिनस लीगल एक्सरसाइज पूरी लीगल फ्रीडम के बाद और सारी कोर्ट्स के पास आ गई। नाउ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज डन इज दे हैव exercise their special power which are available to them under article 142 of constitution of India, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है that in the interest of complete justice वो यूनिफॉर्मली पूरे देश के लिए कोई एक व्यवस्था दे सकते हैं। कोई एक कंट्रोवर्सी जो मैटर उनके पास आया तो उस पूरी इंटायर कंट्रोवर्सियों के लिए एक व्यवस्था दे सकते हैं। तो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज डन इज कि दे हैव एक्सरसाइज्ड दिस पावर अंडर आर्टिकल 142, और जितनी भी रिट पिटीशन ऑल ओवर इंडिया पेंडिंग है या वो केसेस जिसमें रिट फाइल नहीं हुई है, उन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग व्यवस्था दे दी। राइट नाउ दिस एंटायर कंट्रोवर्सी इज एंडेड। ठीक है सर। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक के बीच के जितने भी नोटिस हैं, those will be dealt in accordance with this judgment of the honorable supreme court। राइट कल तक जब तक ये जजमेंट हमारे पास नहीं आया था, हमने जजमेंट नहीं देखा था, तो मोस्ट ऑफ अस वाज preempting that this judgment is going to be against the SSC, और भारत सरकार को बेनिफिट पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज कर लिया है और सारे एसएससी का बहुत नुकसान हो जाएगा और सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। राइट लेकिन जब आपने वर्बैटम को पढ़ेंगे इसको तो दैट एप्रीहेंशन वाज रॉन्ग। अब हम जब समझेंगे तो बहुत ज्यादा एसएससी को इसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान अभी नहीं हुआ है। वी विल अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि जितने भी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया और जो रीजंस दिए और जो कमेंट्स दिए, जो उन्होंने व्यूज दिए कि क्यों ये नोटिस इलीगल है, व्हाई दीज आर नॉन एस्ट इन द आईज ऑफ लॉ, और क्यों ये नोटिस क्वैश किए गए, देन सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस्ड they accepted the reasoning given by the various high courts। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल नहीं किया है। जो भी रीजनिंग किसी भी हाई कोर्ट ने दी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। जो भी लीगल मैंडेट हाई कोर्ट से आया उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में कहा है बिकॉज दीज आर 90,000 notices which are issued by the department under a bona fide misinterpretation of law, bona fide misunderstanding of law, and which misunderstanding was created by these two notifications which were issued under TOLA। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिपार्टमेंट ने गलती से ये नोटिस इशू कर दी। तो अगर ये नोटिस को सबको क्वैश कर दी जाएंगे, इट विल टर्न इनटू ह्यूज लॉस टू द एक्सचेकर। अगर भारत सरकार का खजाने का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज को हम फ्यूटाइल नहीं कर सकते। राइट तो उन्होंने इसको सारी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश किया सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर के अंदर कि एसएससी को नए लॉ का बेनिफिट मिल जाए और डिपार्टमेंट का कोई अननेसेसरी नुकसान ना हो, भारत सरकार का कोई अननेसेसरी नुकसान ना हो। तो एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम वेल सेटिस्फाइड विद द मैंडेट ऑफ दिस ऑर्डर। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में कहा है मुझे वो बात पूरी समझ में आती है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी जो नोटिस हैं विच आर इश्यूड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2021 under section 148, they shall be deemed to be notices issued under section 148 capital।
कोर्ट ने एक डीमिंग फिक्शन, एक व्यवस्था पूरे देश के लिए अपने पास से दी है. दिस इज नॉट द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. This is not the law which was interpreted by the various high courts. Now, this is a new interpretation, new deeming fiction, which is created by this judgment, and mandate of this judgment is mandatory to be followed. ठीक है सर. तो अब नया लॉ ये हो गया कि ये जो 148 के नोटिस जितने भी आए, इन नोटिस को मान लिया जाएगा. ये जो नोटिस हैं, these are the notices which are issued under section 148 capital A under as per the new provisions of law which are applicable from 1st of April 2021. ठीक है सर. ये पिछले लॉ में इशू हुए थे, लेकिन इसको नए लॉ का नोटिस मान लिया जाएगा. राइट. अब हमारे यहाँ क्वेश्चन आया कि 148A का नोटिस इशू करने से पहले as per the new provisions, assessing officer is required to obtain prior approval of the specified authority under section 151. तो यहाँ पर 148 का नोटिस इशू करने में वो प्रायर अप्रूवल तो मिली नहीं है, कोई प्रायर अप्रूवल ली नहीं है. राइट. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नोटिस हैं, तो इसमें जो प्रायर अप्रूवल की जो प्रोसीजर था उसको हम डिस्पेंस कर रहे हैं. अगर ये प्रायर अप्रूवल नहीं लिया तो कोई बात नहीं, स्टिल दीज नोटिसेस आर वैलिड नोटिस एंड शैल बी डीम्ड टू बी इश्यूड अंडर सेक्शन 148 कैपिटल ए ऑफ द एक्ट. अब उन्होंने कहा कि इस जजमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर, ये जजमेंट आया 4 मई 2022 को, यानी 3 जून 2022 तक असेसिंग ऑफिसर के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मटेरियल है, वो एसएससी को कम्युनिकेट करेगा कि मेरे पास आपके खिलाफ ये मटेरियल है. उसके बाद मटेरियल कम्युनिकेट होने के बाद उसके 14 दिन के भीतर एसएससी अपना रिप्लाई फाइल करेगा, अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करेगा. भाई रीओपनिंग शुड नॉट बी मेड, भाई रीअसेसमेंट शुड नॉट बी मेड. उसके बाद सेक्शन 148 कैपिटल 148 सब क्लॉज बी में असेसिंग ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेगा which will be passed within 1 month from the end of the month in which reply by the SSC is filed. ठीक है सर. और जब वो ऑर्डर पास करेगा, अगर उसने ऑर्डर एसएससी के अगेंस्ट पास किया, then the notice under section 148 will be issued with the prior approval of the specified authority along with the order under section 48 clause D to the SSC. और उसके बाद फिर वो रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग की जुरिडिक्शन उसके पास आ जाएगी. राइट. तो ये पूरा का पूरा मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने लिखा. साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 149 है और जो नए लॉ के प्रोविजंस हैं एज पर फाइनेंस एक्ट 2021, वो सारी डिफेंसेस एसएससी के पास अवेलेबल होगी. राइट. यानी कि जो सेक्शन नए वाला जो सेक्शन 149 है, पिछले रिजीम में हमने देखा हमारा जो केस रीओपन होता था दैट वाज अप टू 4 इयर्स और 6 इयर्स. नए रिजीम में जो मेरा केस रीओपन होगा दैट इज अप टू 3 इयर्स, और अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा मेरी एस्केप्ड इनकम है व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एसेट देन अप टू 10 इयर्स. राइट. साथ में सेक्शन 149 जो नया आया उसने लिखा कि एक ऐसा साल है 1 अप्रैल 2021 को एज पर ओल्ड प्रोविजंस जिसको हम नहीं खोल सकते थे. ठीक है सर. वो इस नए प्रोविजन में 10 साल की लिमिटेशन में नहीं आएगा. बात सुनिए. अब हम समझें 31 मार्च 2021 को रीड विद टोला असेसमेंट ईयर 13-14 भी खुल सकता था, असेसमेंट ईयर 14-15 भी खुल सकता था. राइट. 1 अप्रैल 2021 को अगर अनअमेंडेड प्रोविजन को पढ़ें तो असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 ये नहीं खुल सकते सर. ठीक है सर. तो एज पर न्यू सेक्शन 149 असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द न्यू रिजीम. न्यू लॉ के स्कोप के बाहर है. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सेक्शन 148 के नोटिस हैं which are issued between the period from 1st April 2021 to 30th June 21, right, and which pertains to assessment year 13-14 and 14-15. ठीक है सर. they are still non-STBIs of law. यानी कि उन सालों की रीओपनिंग नए लॉ में नहीं हो सकती. मेरे पास सेक्शन 149 का डिफेंस अवेलेबल है. सेक्शन 149 की लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी है उन दोनों सालों की. राइट. तो यानी कि अगर पुराने 148 में मेरा कोई भी नोटिस है जो 2 सालों का आया, वो उसका कोई कार्यवाही अब डिपार्टमेंट मेरे ऊपर नहीं कर सकता सर. वो असेसमेंट नहीं हो सकता. फिर बात आई असेसमेंट ईयर 2015-16, 16-17, 17-18. अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन नोटिस की बात कर रहे हैं which are issued from 1st April 21 to 30th June 21. ठीक है. अब इस पीरियड में जो नोटिस इशू हुए उसमें अगर हम 149 के हिसाब से अगर 3 साल की लिमिटेशन में जाएंगे तो हमारे पास आएंगे असेसमेंट ईयर 18-19,
असेसमेंट ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21। इन 3 साल के लिए कोई मॉनिटरी लिमिट की आवश्यकता नहीं है। और इसके बियॉन्ड अगर मुझे जाना है, इन 3 साल के बियॉन्ड अगर असेसिंग ऑफिसर को जाना है, तो उसके लिए एडिशनल कंडीशन है दैट एस्केप्ड इनकम शुड बी ₹50 लाख और मोर एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एसेट। यहाँ पर ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1 अप्रैल 2022 को एक अमेंडमेंट आई, उसने कहा कि जो एस्केप्ड इनकम शुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय एन एसेट, तो वहां उन्होंने 2 लिंब और ऐड कर दिया दैट इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सपेंडिचर और एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये दोनों लिंब अभी इन नोटिस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली क्या है, देयर हैज टू बी एस्केप्ड इनकम ऑफ ₹50 लाख और मोर एंड इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एसेट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, then assessing officer can go into assessment year 15-16, 16-17 and 17-18, right? तो ये जो 3 साल हैं, यहाँ पर आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना मैंडेटरी है। अब समझते हैं कि अगर ये जो 3 साल है 15-16, 16-17, 17-18, अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा होता कि ये हम सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था नहीं दी होती, तब मैं किस पोजीशन में होता? यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर ब्लाइंडली फॉलो किया होता या इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को ब्लाइंडली फॉलो किया होता, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया होता, तो उस समय मेरी सिचुएशन क्या होती? तो उस समय मेरे सारे नोटिस क्वैश हो जाते। बट वेदर द असेसिंग ऑफिसर कुड हैव रीओपन्ड इट बाय रिजॉर्टिंग टू ड्यू प्रोविजंस अंडर सेक्शन 148 कैपिटल ए, द आंसर इज यस। ठीक है सर, तो ये मेरे पहले भी ओपन हो सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यदि कह दिया कि ये मान लिए जाएंगे नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैपिटल ए, तो आई एम नॉट प्लेस्ड टू एनी डिसएडवांटेजेस पोजीशन। तो मेरा कोई उसमें नुकसान नहीं है, वो पहले भी मेरे खुल सकते थे और अभी मेरे को खुल गए, तो आई हैव टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स और हमें पार्टिसिपेट करके अपना जवाब देना। अब यहाँ पर जो बात है हमने क्लियर कर दिया, असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 आउटसाइड द स्कोप। ये नोटिस आपके 148 के जितने भी हो गए वो नॉन एस्टीम आइज ऑफ लॉ हो गए, उसके लिए आपकी प्रोसीडिंग कोई शुरू नहीं हो सकती। असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17 और 17-18, इसमें असेसिंग ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा कि एस्केप्ड इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एसेट। ठीक है सर, उसके बाद आप अपना मेरिट पे जवाब दीजिए, उसके बाद वो अपना ऑर्डर पास करेगा 148 कैपिटल ए क्लॉज डी का, और उस ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है देन यू कैन गो एंड फाइल अ रिट पिटीशन अगेंस्ट दैट ऑर्डर। ठीक है सर, अब बात आई असेसमेंट ईयर 18-19 की। अभी जो असेसमेंट ईयर 18-19 का कोई नोटिस अगर आ गया होगा, तो यहाँ पर 50 लाख की लिमिट नहीं है, तो इसकी लिमिटेशन मेरी 31 मार्च 2022 को एक्सपायर हो गई। ठीक है सर, अब मैं जब इसकी लिमिटेशन काउंट करूंगा, तो ये मेरा को नोटिस 148 का कब तक आ सकता है? तो रीड विद द न्यू प्रूफ सेक्शन 149, read with proviso number 1, 2, 1, 3 and 4। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 31 मार्च 2022 प्लस जो पीरियड मुझे अलाउ किया एसएससी को रिप्लाई देने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मुझे पीरियड अलाउ किया 14 डेज का, तो 31 मार्च 2022 प्लस 14 दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को रिप्लाई देने के लिए दिए, प्लस वो पीरियड जिसमें मेरा ये 148 का नोटिस जब मैंने हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दे दिया, और जिस डेट तक हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को, उस नोटिस को क्वैश किया, वो जो पीरियड है वो इसमें साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, वो सारा ऐड होने के बाद मेरी नई लिमिटेशन की डेट निकल आएगी, यानी कि 18-19 का जो मेरा नोटिस 148 का आ सकता है उस नई लिमिटेशन के हिसाब से आएगा। यहाँ पर एक फोर्थ प्रोवाइडो है सेक्शन 149 का, वो ये कहता है कि अगर इस लिमिटेशन के हिसाब से असेसिंग ऑफिसर के पास 148A सब क्लॉज डी का ऑर्डर पास करने के लिए 7 दिन से कम बचते हैं, तो 7 दिन लिमिटेशन में और ऐड हो जाएंगे, राइट। तो ये सिचुएशन रहेगी असेसमेंट ईयर 18-19। ठीक है सर, तो ये पूरा इम्प्लीकेशन इस जजमेंट का आ गया, एंड मुझे नहीं लगता कि इस पूरे जजमेंट के आने से कोई डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है या एसएससी को बहुत ज्यादा कोई नुकसान होने वाला है। बाय एंड लार्ज every SSC is placed on the same footing, और ये बड़ा बैलेंस्ड जजमेंट है। और 1 अप्रैल 2022 के बाद जो नोटिस इश्यू होंगे उसकी चर्चा और कर लेते हैं कि उनके पास, डिपार्टमेंट के पास क्या क्या जुरिडिक्शन है, वो कौन कौन से साल खुल सकता है। तो 1 अप्रैल 2022 के बाद भी असेसमेंट ईयर 15-16 खुल सकता है। ठीक है, तो यानी कि अगर इस पुराने रिजीम में मेरा 15-16 खुल गया और 1 अप्रैल 2022 के बाद भी खुल सकता है, तो आई एम नॉट एट लॉस।
अगर डिपार्टमेंट की वो नोटिस क्वैश भी हो जाए, पुराना नोटिस अगर सुप्रीम कोर्ट क्वैश भी कर देता, देन डिपार्टमेंट हैज द राइट टू रीओपन माय असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 15-16, वो 1 अप्रैल 2022 के बाद भी हो सकता है। ठीक है सर, लेकिन 3 साल की लिमिटेशन में विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 जो केस खोल सकता है वो असेसमेंट ईयर 19-20, 20-21 और 21-22 के खोल सकता है। और 50 लाख रुपए which are represented by an asset or an expenditure or an entry in the books of accounts, उसके लिए वो 4 साल खोल सकता है, असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18 और असेसमेंट ईयर 18-19। ठीक है सर, तो ये इस पूरा इम्प्लीकेशन है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को रिजॉल्व कर दिया। अदरवाइज जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी के काम करने वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एसएससी हैं, वी वर इन कंप्लीट लूप कि इतना वॉल्यूमिनस ये लिटिगेशन है, ये कैसे हैंडल होगा एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग टू रिजॉल्व। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस जजमेंट और मुझे इसमें एसएससी का कोई नुकसान अभी तक ज्यादा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। तो जो शुरू में हमारी एप्लीकेशन थी दैट हैज प्रूव्ड रॉन्ग और दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड जजमेंट। तो ये पूरी इम्प्लीकेशन मैंने सारी समझ ली और फिर समझ लें कि हर उस एसएससी के ऊपर ये डिसीजन एप्लीकेबल होगा जिसने रिट पिटीशन फाइल की और उसको फेवर मिल गया, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जिसकी रिट पिटीशन किसी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसके ऊपर भी ये जजमेंट एप्लीकेबल होगा और जिस केस में एसएससी ने कोई रिट फाइल नहीं की है उसके ऊपर भी ये जजमेंट एप्लीकेबल होगा। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक जितने भी पुराने लॉ के हिसाब से नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू हुए हैं उन सब के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। दिस इज अ न्यू लॉ एंड दिस इज वेलकम स्टेप और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा लिटिगेशन का काम जो खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो विवेक जी आई विल रिप्लाई, अदरवाइज आई विल लाइक टू कंक्लूड हियर। So most of the question you have answered कि जो एक हवा बना हुआ था 148 का फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, तो इवन मैं तो ये कहूंगा कि काफी स्पीकर्स के लिए भी काम कम हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज एवरीबॉडी वाज सेइंग 148 के ऊपर बोल रहे थे। लेकिन एक बात जरूर है क्योंकि अभी क्या है कि इसमें नया प्रोसीजर फॉलो होना है और मैंने आज का लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है दैट वी अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉ, क्योंकि अब तो अभी हमारे पास सबके पास शो कॉज नोटिस आएगा, हमें शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देना है, तो हमें अपने डिफेंसेस पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या डिफेंसेस है और हमें क्या रिप्लाई देना है। तो इन अकॉर्डिंग विद लॉ अगर हम रिप्लाई करेंगे तो अभी प्रोफेशनल काम तो बाकी है, क्योंकि जो 90,000 नोटिस है 90,000 के 90,000 नोटिस में शो कॉज नोटिस आएगा और इनका सबका रिप्लाई हम लोगों को प्रोफेशनल को करना है। So that's why this understanding is very very important. Because prima facie आपने ठीक बोला, prima facie हमें यही लगता है कि it's against the assessee, it's in the favor of the revenue, means गवर्नमेंट के फेवर में करा है। But if we go into the detail, जैसे कि आपने क्लैरिफाई किया है पूरा इन डिटेल कि it's not in against the assessee, ये तो पहले ही उनके पास पावर थी and they can open it and बट वन मोर थिंग आई वांट टू से कि अभी इसके ऊपर कोई फर्दर समथिंग लाइक एनी रिव्यू पिटीशन और समथिंग कुछ ऐसा और तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली में इस ऑर्डर में एक और खास बात लिखी है कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है दिस इज अ कंसेंसस ऑर्डर, जो डिपार्टमेंट के वकील थे और जो एसएससी के अपील थे उनकी आपस में कंसेंट के साथ ये ऑर्डर पास हुआ है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप फॉर एनी रिव्यू और रेफरिंग दिस जजमेंट टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और सो। तो मुझे लगता है नाउ दिस कंट्रोवर्सी एंड्स हियर और ये मामला यही समाप्त हो गया है। हम सब लोगों के लिए भलाई इसी में, इसको यही समाप्त समझें और लेट अस प्रोसीड फर्दर विद द मैंडेट ऑफ द लॉ गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। Okay, so my sincere thanks to Rajiv ji for clarifying this judgment in more details and I think जिन लोगों ने मैसेजेस या कॉल किए थे मेरे को, दिस इज द सेम मैटर्स जो उन्होंने पूछा था। आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर वंस वी अपलोड दिस वीडियो। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वीडियो को लाइक भी जरूर करिए एंड आल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार एंड माय रिक्वेस्ट टू राजीव जी प्लीज आल्सो गिव अस टाइम बिकॉज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, शायद मेरे ख्याल मोर देन 1 year we are doing this recording with Rajiv ji, so we'll take more and more time from Rajiv. I really love to be here in CA-Sansar.com और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है इस बात को कहने में कि जो सीए संसार की रीच है ना हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स के साथ वो किसी और चैनल की नहीं है। तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन टू प्रोफेशनल्स और मैं तो समझता हूँ कि योर चैनल इज वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। This is just because I always love coming here and I will come here in future also. जब भी आप बुलाओगे I am here.
Definitely, we'll discuss some more and more topics which are more beneficial for the members with Rajiv ji. So till then, bye bye. Take care. Thank you very much. Namaste. Thank you, Rajiv ji.